Hello, everybody. I welcome you all to One Academy today, and I welcome you to this new series of Sociology Optional. So, welcome to the class, everyone. Today's agenda for the class is understanding the syllabus for paper 1. As you know, in your civil service exam, your optional plays a very important role because it is accounted for 500 marks. And considering the importance of the subject and the marks that you are running for, I would tell you that paper 1 is for 250 and paper 2 is for 250 marks. Today's agenda in the class is to just understand and read out the syllabus for the optional so that we are familiar with the topics and we are able to understand what exactly I'm going to talk about. Class objective and rules, the expectation and outcomes. You can expect this entire series of sociology optional completely free from my side. I'm Vani Mehra. I have done my masters in sociology and have secured very good marks in the UPSC mains examination. I have been teaching from 5 years now in the civil services examination, both offline and online. And at the same time, my experience as a top educator is on the Unacademy platform. One Academy is my own platform. Here I request all of you to subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get the latest updates. The most important thing about this channel is that it is a democratic channel where everything is free provided to you as of now. And we are not asking for anything other than your subscriptions with respect to the channel. That's it. So I'll make it very simple for you people. Today's lesson is the brief introduction. Why are we talking about sociology and what makes it a very important subject? As you all must be knowing that sociology optional is the most important subject in the civil service examination. The most important thing is that it is related to us, around us, the society that we live into. So it makes it a very comfortable subject for all of us. At the same time, guys, you need to understand that when sociology optional as a subject comes with respect to your examination, you have more capacity to score because you have to talk about real time issues of your life. This is not a very boring subject in which you don't have things to talk about or discuss. Everything and anything which is running around you can come in this subject and you can talk about it. In the paper 1, I'm talking about the syllabus only today, so we'll start talking about the fundamentals of sociology beginning with the first part. The first thing that we understand, because it is a subject, so we'll understand what is sociology as a discipline. To understand sociology as a discipline, we need to know when did it emerge as a subject. So the first part 1A is modernity, social change in Europe and emergence of sociology. How did this sociology subject begin? कैसे modernity के बाद social changes हुए यूरोप में जिसके कारण एक नई साइंस का जन्म हुआ which was sociology. क्योंकि और बहुत सारे सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, देयर वर लॉट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी. So we try to understand why sociology is more important and what is the comparison with other social sciences. इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम कंपैरिजन करेंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा. इससे हमें ये पता लगेगा कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस कितनी इंपॉर्टेंट है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं और इसे पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका इंटरलिंकेज क्या है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ. इस पूरे को हम डिस्क्राइब करते हैं. क्योंकि ये ऑप्शनल है इसलिए हम इसे थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं. और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशियोलॉजी इन कॉमन सेंस. कई बार सोसाइटी में आपने सुना होगा दैट दिस इज अ कॉमन सेंस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. तो हम देखेंगे कि सोसाइटी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन सेंसिकल है और कैसे सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस का आपस में रिलेशन है या नहीं है, इसे हम डेप्थ में बात करेंगे. गाइस लेट मी टेल यू, ये आपका पहला चैप्टर है. पार्ट ए बी सी आर द पार्ट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर. इन तीनों को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा. इट्स नॉट कि आप थोड़ा डिस्कस करके छोड़ सकते हैं. द सेकेंड चैप्टर इन योर पेपर 1 इज सोशियोलॉजी एज साइंस. बिकॉज हम इसे एक साइंस कह रहे हैं, डेफिनेटली देयर विल बी अ साइंटिफिक मेथड एंड अ क्रिटिक टू मेजर इट. जैसे साइंस में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेबोरेटरी में जाते हैं, टेस्ट करते हैं, किसी चीज़ को कंफर्म करते हैं, उसी तरह से कैसे हम सोसाइटी के किसी फैक्ट को कंफर्म कर सकते हैं with the help of research methodology, with the help of different kind of techniques, कैसे हम उसे hence prove कर सकते हैं. We will discuss that sociology as a science के अंदर.
इसका सेकंड पार्ट है मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ऑब्वियसली जब आप इसे साइंस कह रहे हैं तो आप इसके पीछे एक रिसर्च भी करेंगे। सो वी विल डिस्कस कि वो कौन सी थ्योरेटिकल स्टैंड्स है रिसर्च मेथोडोलॉजी के। We'll talk about positivism and its critique, fact, value, and objectivity. We will talk about non-positivist methodology, and we will also be discussing about the next chapter, that is the third chapter, research method. क्योंकि ये interlinked है, आपको समझ आएगा जब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर। कोई भी रिसर्च दो तरह से कंडक्ट की जा सकती है। एक होती है क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर नेचर, देयर बिहेवियर। एक होती है क्वांटिटेटिव विच कैन बी मेजर्ड। मेजरिंग अ ह्यूमन बींग्स बिहेवियर इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल आज मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और एकदम से मुझे किसी के कॉमेंट पढ़ के गुस्सा आ जाता है, तो आप लोग शायद ये प्रेडिक्ट ना कर पाए कि मुझे गुस्सा क्यों आया, बिकॉज दिस इज अ क्वालिटेटिव थिंग। बट मुझे किस इंटेंसिटी पे गुस्सा आया शायद आप उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं कि आई वॉज सो एंग्री दैट आई जस्ट एग्जिटेड फ्रॉम द क्लास और आई एंड द क्लास लाइक दैट। और हाउ मेनी पीपल गेट एंग्री व्हेन एनी सच कमेंट्स कम इन द लाइव सेशंस। दिस वुड बी कमिंग आउट ऑफ अ रिसर्च। सोशियोलॉजी के अंदर रिसर्च को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सर्वे और क्वेश्चनर्स एक्सेट्रा, जो लोगों से पूछ के हम पता कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है उसके लिए हम सर्वे कंडक्ट करते हैं। कितनी विमेन इंडिया में लिटरेट है या इलिटरेट है उसका सर्वे। इंडिया में मैटरनल मोर्टालिटी रेट या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना बढ़ा है घटा है उसका सर्वे। अलग अलग वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है, उसे हाइपोथेसिस कैसे किया जाता है, कैसे हम उस सैंपल को एक रिलायबल सैंपल बना सकते हैं, और अगर किसी थर्ड पर्सन को उस सैंपल की वैलिडिटी चेक करनी है तो वो कैसे की जाती है। भले ये टॉपिक्स आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, बट जब हम इन्हें डेप्थ में बात करेंगे तो दीज आर बिग टॉपिक्स। रिसर्च मेथड्स एंड एनालिसिस से काफ़ी क्वेश्चन हर साल आते हैं। दैट इज वाई ये हमारा काफ़ी प्रायोरिटाइज टॉपिक रहेगा इन पेपर 1। एंड नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कार्ल मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिकल साइंस। कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल। मार्क्स हैज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, कि सोसाइटी में दो तरह की क्लासेस होती है, एक होते हैं हैव्स और एक होते हैं हैव नॉट्स। कैसे हम अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बाद अपने ही प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाते हैं, इस पूरी थ्योरी को मार्क्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये थ्योरी हमें सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह के आप कह सकते हैं स्ट्रगल्स हैं, उनके बारे में बताता है। कैसे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी किस तरह से सोसाइटी में स्ट्रगल करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स की जो थ्योरी है ये बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि मार्क्स का कहना है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो है या जो आप एलिनेशन का कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ वेरी मच एग्जिस्टेड इन द सोसाइटीज। इसीलिए अगर किसी सोसाइटी को समझना है तो सोसाइटी के अंदर स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़रूरत है। सिमिलरली एक बहुत ही बढ़िया थिंकर थे एमाइल डर्काइम। डर्काइम के डिविजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड, रिलीजन और सोसाइटी, ये जो थ्योरीज है ये बहुत ही बढ़िया थ्योरीज है। जब हम इन थ्योरीज की बात करते हैं हमें ह्यूमन बिहेवियर के पीछे का रीजन, सोसाइटी में लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके लिए रिलीजन कितना बड़ा और कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें समझ आती है। डर्काइम की जो थ्योरीज है वो बहुत रिलेटेबल है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। अगले जो इंपॉर्टेंट थिंकर है पेपर 1 में, दैट इज मैक्स वेबर, जिनकी सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थ्योरी है। मैक्स वेबर की थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो बताते हैं कि सोसाइटी में हर किसी का एक रोल है, एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के तौर पे जो वो बताते हैं कि हायरार्कियल रोल डिवाइडेड है सोसाइटी में। सबसे टॉप टू डाउन अप्रोच में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अथॉरिटी ऊपर से नीचे होती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम डाउन टू अप। Max Weber की theory of social action talks about how in the society different players or different institutions are responsible for different type of social actions, and we will discuss in detail about how Max Weber he thinks about different perspectives. The next thinker is Talcott Parson, जिनकी social system और pattern variables की थ्योरी है। बहुत ही कमाल की थ्योरी है पार्सन की।
ये थ्योरी समझने को बहुत आती है क्योंकि AGIL प्रिंसिपल जो है, जो टारगेट पार्सन ने दिया है पैटर्न वेरिएबल्स को समझने के लिए, वो अपने आप में बहुत ही बेखूब है कि किस तरह से हम गोल्स बनाते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं और किस तरह से हम अपने सोशल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंकर इज रॉबर्ट के मर्टन, जो बात करते हैं लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस की। हम बहुत तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं एज ह्यूमन बींग्स। लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन मतलब कुछ फंक्शंस जो बहुत ही नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के पीछे के रिक्विजिट फंक्शंस होते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट फंक्शंस कहते हैं। मॉर्टन बात करते थे कन्फर्मिटी एंड डेवियंस के बारे में ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड रेफरेंस ग्रुप्स। जब भी हम कुछ भी सोसाइटी में करते हैं तब हम अलग अलग रेफरेंस ग्रुप्स को देखते हैं, अपने से ऊपर या अपने से बेटर ग्रुप्स को देखते हैं, हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम उनसे कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं। और अगले जो हमारे थिंकर है वो थे मीड, जिनकी सेल्फ एंड आइडेंटिटी थ्योरी है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है ये भी गाइस। तो ये जितने भी थिंकर्स हैं आप कह सकते हैं ये आपके पेपर 1 के या सोशियोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर्स है और इनसे यूपीएससी इतने कमाल के क्वेश्चंस पूछता है और हर साल थिंकर्स जो है उनके क्वेश्चंस पे आपकी पूरी गेम चलती है। अगर आप इसे और डेप्थ में समझना चाहें तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब्जेक्ट को अच्छे से डिफाइन किया है। तो जब भी आप कोई भी थ्योरी या किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं, आप इन्हें कोट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आंसर और बेटर होगा और लगेगा। इसलिए सिर्फ ये थिंकर्स नहीं, कुछ और भी थिंकर्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। अगला चैप्टर है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी पेपर 1 में, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एंड डेप्रिवेशन। हम थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबेरियन थ्योरी। डायमेंशंस की बात करेंगे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ क्लास, स्टेटस, ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। एंड सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ मोबिलिटी, सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ मोबिलिटी, हम इनके बारे में बात करेंगे। जो अगला चैप्टर है वो है वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। बहुत अलग अलग तरह की सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी। स्लेव सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और जैसे जैसे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती गई लोगों का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बदलता गया। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड लेबर एंड सोसाइटी, किस तरह से लेबर के आने के बाद सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पॉलिटिक्स इन सोसाइटी अगला हमारा चैप्टर है, जिसमें हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। पावर एलीट क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, प्रेशर ग्रुप्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिविज्म एंड देन रेवोल्यूशन। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं बहुत ही अलग अलग तरह से लोग अपना रोल प्ले करते हैं, एज अ नेशन, एज अ स्टेट, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, ये सब तरह की जो आइडियोलॉजीज है इनके बारे में हम बात करते हैं। एंड देन रिलीजन एंड सोसाइटी इज द नेक्स्ट चैप्टर। रिलीजन सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे आज मॉडर्न सोसाइटीज हो या ट्रेडिशनल सोसाइटीज हो, रिलीजन हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि गवर्नमेंट के साथ रिलीजन मिल गया है, बट रिलीजन और सोसाइटी अपने आप में बहुत ही इंटीग्रेटेड है। सो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन, रिलीजन कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे उसकी आप कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। एनिमिज्म, जिसमें हम एनिमल्स की पूजा करते हैं। मोनिज्म, प्लूरलिज्म, सेक्ट एंड कल्ट, बहुत तरह की, हम प्लांट्स की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, हम एक भगवान की पूजा करते हैं, मल्टीपल भगवान की पूजा करते हैं। देर आर डिफरेंट सेक्ट, देर आर डिफरेंट कल्ट्स, छोटे छोटे रिलीजियस ग्रुप्स विच हैव कम फ्रॉम मेजर रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन एंड साइंस, सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म और फंडामेंटलिज्म, इनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सिस्टम्स ऑफ किनशिप, फैमिली, हाउस होल्ड एंड मैरिज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज अ सोसाइटी द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी सीखते हैं, जो भी बनते हैं, अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपनी फैमिली के कारण बनते हैं। हमारा हाउस होल्ड, मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसा है, आज मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसा हो गया है। टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ फैमिली, पहले जॉइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है।
extended families है, live-in relationships है. These are the kind of relationships that people share. Lineage and descent, patriarchy and sexual division of labor and contemporary trends. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, क्योंकि ये बहुत करंट अफेयर के एस्पेक्ट को टच करेगा. And then the last one is social change in modern society, sociological theories of social change, development and dependency, agents of social change, education and social change, science, technology and social change. आप अपने आप में सोच रहे होंगे कि आज हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात क्यों की, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बताना चाहूंगी कि जब तक आप बैटल के अंदर घुसने से पहले ये नहीं जानते कि आप किस चीज के साथ लड़ने लगे हैं और आपके पास किस तरह के वेपन्स हैं, आप नहीं समझ पाएंगे. इमेजिन कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर दूं प्रीवियस सेट क्वेश्चन या फर्स्ट क्लास से, एंड आई डोंट इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स टू यू, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ इट. लेट मी टेल यू, ये कोर्स 2020, 21, 22, 23, 24 जितने भी सोशियोलॉजी के बच्चे उन सब के लिए अवेलेबल है. द रीजन इज बिकॉज गाइज कहीं ना कहीं ऑप्शनल आपको तैयार करना है, और ये पेपर 1 जो है बिल्कुल स्टैटिक है. डायनामिक पोर्शन पेपर 2 में आता है जिसमें आपको अपडेट करना पड़ता है. मेरी कोशिश रहेगी कम से कम क्लासेस के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को मैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में कवर कर सकूं, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो. बुकलेस रिसोर्सेज की भी वीडियो आई विल बी अपलोडिंग वेरी सून. एनीवेज, दिस इज द फर्स्ट वीडियो. I request all of you to share the video with hashtag Van Academy on Facebook, hashtag Van Academy on Instagram, and also on Twitter you can tag me, so that we have maximum spread of the word of how we can change the way people learn, India learns. So a quick revision for all those people who might have joined late. Also guys, आप लोग जानते हैं कि मैं Unacademy पे एजुकेटर हूँ. Unacademy प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, यू कैन यूज माई रेफरल कोड वानी मेहरा फॉर डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ मैं ऑप्शनल पढ़ा रही हूँ और वहाँ मैं मोस्टली जीएस के बैचेस को कवर कर रही हूँ. तो अगर आपको जनरल स्टडीज पढ़ना है तो आप वहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शनल पढ़ने के लिए और करंट अफेयर ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए यू कैन रेफर टू माई चैनल. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, सो यू डोंट हैव टू वरी. ऑल्सो जो अपकमिंग क्लासेज होगी, आई विल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आप लोग रजिस्टर करेंगे. जो लोग रजिस्टर करेंगे उन्हें ही क्लास के बाद का जो कंटेंट और पीडीएफ है वो मिलेगा. एंड आई विल ऑल्सो बी टेकिंग योर अटेंडेंस ड्यूरिंग अ लाइव सेशन, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अटेंडिंग इट और नॉट. जैसे ही ये वीडियो प्रीमियर होगा, आई विल टेक योर अटेंडेंस एवरी डे. जो बच्चे रेगुलर रहेंगे, आप लोग का रिकॉर्ड मेरे पास होगा. आई विल बी सेंडिंग यू पर्सनली पीडीएफ्स ऑफ कॉन्टेंट फॉर क्विक रिविजन्स. So regularity is everything, guys. Regularity is everything. Let's have a quick revision of what we did today. Just a minute. Thank you for joining today's class. You can WhatsApp me on this number, everyone, in order to register for Sociology Optional. 6283817919. You can all WhatsApp me on this particular number. I will also provide the details. I think it's 17917. I'll have to confirm. I think the number is right or wrong. Please check out the description in order to also see my courses which are there on Van Academy YouTube channel.
Also, you can submit your answers for general studies on my website of www.vanacademy.com. And at the same time, guys, if you have any doubts, you can just WhatsApp me. If you are watching my video, then you can WhatsApp me on this particular number. I'll confirm the number and send you people in the description box. And on that number, you can write down sociology, ma'am. That's it. When you just send me that message, I will just add you in a group wherein we can have interaction, and we can all upload PDFs, and I can upload stuff over there, so that you people are updated with the content. You can follow me on my Telegram channel of Vani Academy, and also on my Telegram channel of Sociology Optional by Vani Mehra. So thank you so very much, everybody. All the links will be provided in the description. Just share this video with the hashtag Vani Academy on Facebook, Instagram, Twitter, everywhere, and let's spread the word to the larger audience that this is a free course for quick revision of optional. And if you people really like these courses, then we'll bring up a proper course on sociology optional for you people, and so that you people learn in a very better manner. Thank you so much. Take care of yourself. Do like the video, subscribe to the channel, and share to the maximum. Take care, guys.